નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને શહેરથી ગામ સુધીમાં હું છું આપની સાથે નંદની। સમાચારોની શરૂઆત કરીશું, જેમાં લીંબડી ખાતેથી સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। લીંબડી પંથકમાં અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે, જ્યારે ભારે પવન ફૂંકાતા સેવા કેમ્પનું મંડપ ધરાશાયી થયું છે। ચોટીલા જતા પદયાત્રીઓ માટેનો કેમ્પ ધરાશાયી થયો છે અને અસરગ્રસ્ત થયો છે। તો લીંબડી ના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે। છાલિયા તળાવ પાસે સમગ્ર ઘટના બની છે। ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, સાથે સાથે વરસાદ પણ પડી રહ્યો છે, જ્યારે મંડપ ધરાશાયી થતા 2 પદયાત્રી ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। તો લીંબડી ખાતેથી સમાચાર। લીંબડી પંથકમાં અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે, ભારે પવન પણ ફૂંકાઈ રહ્યો છે, જ્યારે ભારે પવન ફૂંકાતા સેવા કેમ્પનો મંડપ ધરાશાયી થયો છે। મંડપ ધરાશાયી થવાના કારણે પદયાત્રીઓ માટેનો આ કેમ્પ અસરગ્રસ્ત થયો છે, જેમાં છાલિયા તળાવ પાસે આ ઘટના બની છે। સમગ્ર ઘટનામાં 2 તો દાહોદમાં કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, શવયાત્રા કાઢવામાં આવી છે। તો સમાચાર દાહોદ ખાતેથી સામે આવી રહ્યા છે, તો કોંગ્રેસનો વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે। દાહોદ કોંગ્રેસે શવયાત્રા કાઢી વિરોધ નોંધાવ્યો। રખડતા ઢોર અને અન્ય પશુઓને પાંજરે પૂરવાની માંગ હવે કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવી છે। 22 દિવસથી ધરણા પર બેઠેલા કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો છેલ્લા 22 દિવસથી કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરાઈ રહ્યો છે। નનામી લઈને પ્રાંત ઓફિસમાં વિરોધ કરવા માટે કોંગ્રેસના કાર્યકરો પહોંચ્યા છે। પ્રાંત કચેરી બહાર ભાજપ વિરોધી નારા લગાવીને વિરોધ કર્યો છે। તો દાહોદ કોંગ્રેસ દ્વારા છેલ્લા 22 દિવસથી વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો 22 દિવસથી તંબુ તાણી ધરણા પર બેઠા છે। સ્માર્ટ સિટીમાંથી રખડતા પશુઓને પાંજરે પૂરવાની માંગ હવે જોવા મળી રહી છે। શવયાત્રા લઈને કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો પ્રાંત કચેરીએ પહોંચ્યા। ભાજપ વિરોધી નારા લગાવવામાં આવ્યા। છેલ્લા 22 દિવસથી આ નનામી અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીની અને નગરપાલિકાની નનામી કાઢી છેલ્લા 35 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટી દાહોદમાં રાજ કરે છે, પરંતુ આ દિવસ સુધી રખડતા ઢોર અને રખડતા કૂતરાનો ઉપદ્રવ ગયો નથી। દાહોદ શહેરીજનોને કૂતરા કરડે છે, દાહોદ શહેરીજનોને આ રખડતા ઢોર નુકસાન કરે છે। 7 દિવસ સુધી લોકોને પીવાનું ચોખ્ખું પાણી નથી મળતું। 1500થી વધારે દાહોદ શહેરમાં સ્ટ્રીટ લાઇટો બંધ છે, ગટરોના ઢાંકણા તૂટેલા છે, ગટરો ઉભરાય છે। જન્મ અને મરણના દાખલા માટે લોકો 1 મહિના સુધી દાહોદ નગરપાલિકાને ધક્કા ખાય છે, તો પણ લોકોનું કામ નથી થતું। એટલે સામાન્ય જનતાની વાત સાંભળવામાં નથી આવતી। એટલે અમારે અહીંયા છેલ્લા 22 દિવસથી હું ઉપવાસ પર બેઠો છું। આજે જ્યારે અમારો 22મો દિવસ છે, 22 દિવસ થયા ત્યાં સુધી આ જાડી ચામડીના સરકારી અધિકારીઓની કોઈ પણ જાતની આંખ ખુલતી નથી। ત્યારે આજે અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનની અમે આજે પ્રાંત ઓફિસ ખાતે અમે પહોંચ્યા છે। આપણા દાહોદ શહેરમાં હજુ પણ રખડતા ઢોર, રખડતા કૂતરાઓ અને રખડતા જે પ્રાણીઓ છે એમનો ત્રાસ વર્તાઈ રહ્યો છે। આજે પણ આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ પ્રકારની એવી એજન્સીની નિમણૂક નથી કરી કે જે આ રખડતા પ્રાણીઓને પકડે છે। આપણા દાહોદના ધારાસભ્યશ્રી કે જે નગરપાલિકા ચોકમાં મોટી સ્ક્રીન મૂકીને લોકોને ક્રિકેટ મેચ બતાવે છે, મારે એમને પ્રશ્ન છે કે તમે લોકોને આ મોટી સ્ક્રીન મૂકીને દાહોદ નગરપાલિકાનો હિસાબ બતાવો, દાહોદનો વિકાસ બતાવો। છેલ્લા 22 દિવસથી જ્યારે દાહોદ શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ અને દાહોદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ અત્યારે ધરણા પર બેઠેલી હતી અને ઉપવાસ પર, અને સાથે સાથે અમે થોડા દિવસ પહેલા આવેદન આપ્યું હતું, ત્યારે ચીફ ઓફિસર સાહેબે આશ્વાસન આપ્યું હતું ખાલી કે અમે આ કામગીરી પૂર્ણ કરીશું। જ્યારે આજે અમે અહીં નનામી લઈ અને આવેદન આપવા આવ્યા, ત્યારે એક ફરફરી લઈને અમારી સામે આવ્યા અને કહે છે કે 90 પૂર્ણ થઈ ગયું છે। જ્યારે મેં એમને સવાલ કર્યો કે આ 90% કામ કયા સ્થળ પર પૂરું થયું છે, એ સ્થળ પર અમને લઈ જાઓ, તો કે અમે નથી લઈ જઈ શકતા। તો રાજકોટ ખાતેથી સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી છે। તો સમાચાર રાજકોટ ખાતેથી સામે આવ્યા છે। રાજકોટમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ કાર્યકારી અધ્યક્ષની પ્રેસ કોન્ફરન્સ, જેમાં ઇન્દ્રવિજયસિંહ ગોહિલે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે। તો કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી છે। ટીઆરપી ગેમ ઝોન ગેરકાયદેસર બાંધકામ અંગે ભાજપ પર પ્રહારો કરવામાં આવ્યા છે। રાજકોટ ભ્રષ્ટાચારનું કેન્દ્ર બની ગયું હોવાના આરોપો પણ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં સામાન્ય માણસોના બાંધકામો તૂટી રહ્યા છે, બુલડોઝર ચાલી રહ્યા છે તેવા આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે। ટીઆરપી ગેમ ઝોન કાંડ, જેમાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા જે પરવાનગીઓ આપવાની હોય, જે સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરવાનું હોય, એ કરવામાં ચૂક કરવામાં આવી, ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો, જેનો ભોગ રાજકોટ શહેરના અનેક યુવાનો બન્યા।
અને 500 ડિગ્રી જેવા ટેમ્પરેચરની અંદર પોતાનો જીવ સળગીને ગુમાવવો પડે એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ. એના પરિવારજનો આજે પણ ન્યાય માંગી રહ્યા છે, પરંતુ ન્યાય મળતો નથી. સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચૂંટાયેલા નગરસેવકો, કોર્પોરેટરો કે જેમની જવાબદારી છે કે રાજકોટ શહેરમાં કઈ રીતે સુશાસન લાવી શકાય, પરંતુ આ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ માત્ર ભ્રષ્ટાચાર કરવા સિવાય રાજકોટ શહેરમાં કશું કરતા નથી. તો લોકસભામાં અમિત શાહ લાઈવ આવી રહ્યા છે, સીધા ત્યાં જઈશું. पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला. ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि सत्य को झुठलाया जा रहा है. ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था. लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था. लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था इसलिए विकास नहीं पहुंचा था. आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है मान्यवर. बस्तर में विकास. ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे. संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है. अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है. ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं वो समय चला गया. ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना. इस तरह से नहीं चलेगा. सरकार संवेदनशील है, सभी समस्याओं को सुनना चाहती है, निराकरण भी चाहती है. यही संसद ने ढेर सारी योजनाएं बनाई है, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन भी आप नहीं करने दोगे क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी और आपका अवैध शासन वहां पर चलता रहे. मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के लोग बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कहते थे, और राजकुमार रोज जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थियोरी का समर्थन कर रहे थे. मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? विकास तो अब आकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं. 60 साल तक उसको घर नहीं दिया, उसको पानी नहीं दिया, इसके लिए स्कूल नहीं बनी, मोबाइल टावर नहीं पहुंचने दिए, बैंक की फैसिलिटी नहीं पहुंचने दी, और अब आप हिसाब मांग रहे हो. अरे भाई जग थोड़ा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि दोषी कौन है. मान्यवर, मैं पूरा बताऊंगा. मान्यवर, 12 राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश के 3 जिले, ये पूरा रेड कॉरिडोर बनाकर रखा और वहां कानून का शासन समाप्त कर. 12 करोड़ लोग गरीबी के अंदर सालों तक जीते रहे, किसी ने चिंता नहीं की. हजारों युवाओं की मृत्यु हुई. एक एनजीओ की अगर मान ले तो इधर और साइड से 20,000 युवा मारे गए. कई पूरा जीवन दिव्यांग बन गए, अपाहिज बन गए.
नर्क का जीवन जी रहे हैं और उनके तक विकास भी नहीं पहुंचा। मान्यवर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या इस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत ने क्षीर नीर कर इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए? या अपने गढ़े गढ़ाई थियोरी लेकर घूमते रहना चाहिए? मैं बाद में बताता हूं कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी को अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा जी ने स्वीकार कर लिया, ये वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला है। मान्यवर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के सामने स्वीकारा था कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में भी देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या हथियारी माओवादी, मगर कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, 2014 में परिवर्तन हुआ और मोदी जी के शासन के अंदर कई सारी वर्षों पुरानी समस्या का निराकरण हुआ। धारा 370 हट गई, 35A हट गई, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है, जीएसटी इस देश में आज वास्तविकता बनकर रहा है, सीएए का कानून आ गया है, विधायी मंडलों में मातृशक्ति को 33% आरक्षण दिया गया है। कई सारे बड़े काम जो आजादी के वक्त से इस देश की जनता चाहती थी कि कभी ना कभी हो, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के 12 साल में हुए और अब ये नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर ही हो रही है। ये 12 साल एक प्रकार के देश के लिए बहुत शुभंकर साबित हुए। देश को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए, देश के युवाओं के लिए नई शिक्षा पद्धति लाने के लिए, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, इस देश के मूलों से न जुड़ी हुई पॉलिसियों को दरकिनार करने के लिए ये 12 साल में बहुत कुछ हुआ है। मगर मैं मानता हूं, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी इसका रेटिंग करना चाहेगा कि ये सारी चीजों से सबसे बड़ा फायदा किस फैसले और किस सिद्धि से हुआ है, तो निसंकोच वो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नक्सल मुक्त भारत को नंबर 1 पर रखने से जरा भी नहीं। मान्यवर, ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है, बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं। मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है, इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। और आज मैं फिर से एक बार इस चर्चा की शुरुआत में जो हजारों युवा मारे गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान कर दिया, वो सभी को मन पूर्वक पूरे सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर उसको एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मान्यवर, जो विचारधारा है
इसका विकास से कोई लेन देन नहीं, विकास के मांग से भी कोई लेन देन नहीं। ये विचारधारा कौन सी है? क्या है माओवादी विचारधारा? इसका ध्रुव वाक्य क्या है? जब हम आजाद हुए हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय हो, विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है? कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये इनका ध्रुव वाक्य है और वहां सत्ता शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विकास के लिए नहीं है, अपने आइडियोलॉजी के अस्तित्व के लिए है, अपने आइडियोलॉजी के विचार विजय के लिए है और आइडियोलॉजी को भोले भाले आदिवासियों में स्प्रेड कर कर सत्ता हासिल करने के लिए। यहां कोई विकास की बात नहीं है, इनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। यहां ढेर सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता, मैं सुन रहा था 3 घंटे से कह रहे कि अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई लड़ने का तरीका क्या है? हम अंग्रेजों के शासन में नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों ने भगत सिंह जी और बिरसा मुंडा से कंपैरिजन कर दिया। क्या हिमाकत कर रहे हैं? शहीद भगत सिंह और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों के सामने लड़े, वो संविधान तोड़कर हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों की हत्या करने वालों लोगों के साथ आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं? मान्यवर, राजनीतिक स्वार्थ से ऐसे विषयों में ऊपर उठ जाना चाहिए। यही विचारधारा कहती है दीर्घकालीन युद्ध ही हमारी विचारधारा को फैला सकता है। उनको अपनों का भी खून बहाने से कोई परहेज नहीं। और उनके आदर्श देखिए साहब, 10,000 साल के हमारे उपलब्ध इतिहास में कितने आइडियल आदर्श पुरुष, स्त्री, युवा हुए, एक बहुत बड़ा लिस्ट बन सकता है। इन्होंने तिलका मांझी को अपना आइडियल नहीं समझा, भगवान बिरसा मुंडा, भगत सिंह जी या सुभाष बाबू को अपना आइडियल नहीं समझा। इन्होंने आदर्श किसको कहा? माओ को कहा। चीन का ये आदर्श तय करने में भी फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। मान्यवर, बस्तर का सिलेक्शन क्यों हुआ? एक कार्यक्रम था भारत मंडपम में, बस्तर क्षेत्र से जो अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे थे ऐसे युवाओं के साथ मेरा इंटरेक्शन था। तो मेरे नाश्ते के टेबल पर एक बच्ची बैठी थी। उसने कहा कि साहब आप बता सकते हैं कि माओवादियों ने, नक्सलाइटों ने हमारे बस्तर को ही क्यों चुना? मान्यवर, इस विषय को मैं जरा डिटेल बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 47 में जब हम आजाद हुए, संसाधन बहुत कम थे। एक लंबी गुलामी के कालखंड को समाप्त कर कर हम आजाद हुए थे। देश के अंदर विकास का नामो निशान नहीं था। दशकों तक, लगभग 2 सदी तक इस देश को गुलामी में लूटा गया। जब नया राज्य बना तो राज्य की पहुंच कुछ क्षेत्रों में सीमित रहेगी, थी ही नहीं, बढ़ानी थी। ये तो समय जाते जाते बढ़ेगी। और मान्यवर, क्योंकि संसाधन कम थे, रेवेन्यू कम थी, तो विकास भी परकोलेट होते होते हर क्षेत्र में एक साथ नहीं पहुंचता है। अगर रोड बनाना है तो पूरे देश के एक साथ नहीं होते। अगर बिजली पहुंचानी है तो पूरे देश में एक साथ नहीं पहुंच सकती। तो दूर दराज के क्षेत्रों तक स्टेट की पहुंच की कैपेसिटी सीमित, वहां पर विकास नहीं पहुंचा था। राज्य का इकबाल, स्टेट का इकबाल वहां बुलंद नहीं हुआ था। अब ये कह रहे कि अत्याचार के खिलाफ, भाई अगर स्टेट पहुंचा ही नहीं था, सुनियोजित भेदभाव का वातावरण ही नहीं था,
तो वहां अत्याचार कैसे हो गए? मान्यवर, एक कहानी गढ़ी जा रही है। सच्चाई ये है कि इन्होंने पूरे रेड कॉरिडोर को इसलिए चुना था क्योंकि वहां स्टेट की पहुंच कम थी। इसलिए भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर इनके हाथ में हथियारें पकड़ाई। मैं कुछ दृश्य बाद में आपको बताऊंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। 15 अगस्त 1947 के पहले इस देश का ट्राइबल बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती मुर्मू बंधुओं को हीरो मानकर चलता था। वो आदिवासी 47 से 70 आते आते माओ को अपना हीरो मानने लगा। ये परिवर्तन क्यों हुआ? मान्यवर, ये परिवर्तन विकास और अन्याय के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कठिन भूगोल के कारण और स्टेट की अनुपस्थिति के कारण अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने क्षेत्र को चुना और भोले भाले आदिवासियों को उन्होंने बरगलाना चालू किया, अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाया। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनको लगा यहां तो अच्छा काम हो सकता है भाई, मगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। स्कूलें जला दी, इनके बैंक अकाउंट खुल जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। बैंकें जला दी, दवाखाने जला दिए और फिर कहे यहां विकास नहीं पहुंचा है। विकास को तो वामपंथी उग्रवादियों ने वो क्षेत्र में सालों तक नहीं पहुंचने दिया, जो अब नरेंद्र मोदी के शासन में वहां पहुंच रहा है, घर घर जा रहा है। गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला। સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ લિમિટેડ દ્વારા અત્યંત પ્રીમિયમ અને અદ્યતન હાથી પ્લસ કોમ્પોઝિટ સિમેન્ટનું ભવ્ય લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। 27 માર્ચ 2024ના રોજ રામપરા ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમમાં કંપનીના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર અને સેલ્સ માર્કેટિંગ અધિકારીઓની હાજરીમાં આ નવી પ્રોડક્ટનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું। 1956થી ગુજરાતના નામાંકિત સિમેન્ટ ઉત્પાદક સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ લિમિટેડનું આ નવો હાથી પ્લસ સિમેન્ટ વધુ મજબૂતી, વધુ ટકાઉપણું અને શ્રેષ્ઠ કાર્યક્ષમતા આપવા માટે વિશેષ રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। મકાનથી લઈ પુલ કે કોઈપણ બાંધકામ માટે હાથી પ્લસ એ મજબૂતી અને વિશ્વસનીયતાનું પ્રતીક છે। સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ લિમિટેડની આ નવી પ્રોડક્ટથી ગુજરાતના બાંધકામ ઉદ્યોગને નવી તાકાત મળશે। તો સમાચારમાં હાલ બસ આટલું જ। વધુ માહિતી માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ। નમસ્કાર।